Class 11th, we have studied relation from set A to set B. Relation is a word can be formed between two person, two family, two things, and two numbers. Okay. Here I have shown relation between two family. Suppose this is your family, this is your uncle's family. The relation between two family is shown. Relation can be formed two things, two objects, and relation can be formed between two numbers. So I have shown here number relation. Suppose y equal to 2x. If x equal to 1, then y equal to 2. But there is no option in 2. So if x equal to 2, then 4, 3. 6 is not here. 4 to 8. So there is a number relation between two sets. Okay. Definition says A and B two non-empty sets. I have shown set A containing 2 elements 2, 3 and set B containing 3 elements this. And a relation R is said to be relation from set A to B. R is a subset of a Cartesian product. So I have shown just Cartesian product, you know, from class 11th. 2, 6, 2, 9, all these are Cartesian product. And define a relation y equal to 3x. So set 1 containing 2, 3, this is nothing. And set B containing 6, 9, 12. According to this relation, y equal to 3x. If x equal to 2, then y equal to 6. Y equal to 3x is the relation. And mind it, x belongs to set A, set of all elements 2, 3 from set A and 6, 9, 12 from B. And if x equal to 3, then y equal to 9. So if I write the relation, so 2, 6 and 3, 9, the pair of element belongs to this relation. Okay. So we discussed relation from set A to B. Now the relation on a set means we will get only one set. We have to find the relation among the elements. For example, in a family, relation among the members of father, mother, etc. On a set means there is a set containing 3 elements 1, 2, 3. Now we want to find the relation between 1, 2, 3. Empty relation. No element makes relation with any element. Definition says कोई किसी से किसी भी कीमत में रिलेट नहीं होनी चाहिए. सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दे रखा हूं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 5. क्या इनमें से कोई दो पेयर एलिमेंट मिल सकता है कि दोनों का सम जो है ग्रेटर देन 5? आंसर इज नो. सो r इक्वल टू 5. There is no relation between any two elements. You can take help of ray diagram also. A to A, 1, 2, 3, 1 can be related with any element. Answer is no. कोई किसी से relate नहीं हो सकता है. तो this kind of relation is called empty relation. Number 2, universal relation. Universal relation. In universal relation, एवरी एलिमेंट मेक्स रिलेशन विद एवरीवन. इसका मतलब हमें ऐसा एक रिलेशन यहां पर डिफाइन करेंगे जो हर एलिमेंट किसी के साथ भी रिलेशन बनाना चाहिए, बना सकता. अगर बना सकता है तो उस टाइप के रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1 और एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए. देखना, क्या कोई भी दो नंबर का सम 1 से ज्यादा होगा? ये तो हर किसी से हो सकता है. अगर मैं कहूंगा कि सपोज ये ए और ए 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्या 1, 1 से रिलेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, 1, 2 से भी हो सकता है, 2, 3 भी से हो सकता है, 2, 1 से हो सकता है. इसका मतलब एवरी एलिमेंट can be related with every element on set A. So this kind of relation is called
यूनिवर्सल, यहाँ कोई किसी से रिलेट नहीं हो रहे, ये हर एलिमेंट हर किसी से रिलेट हो रहे हैं, तो इस टाइप का सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल और इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशंस। ओके, तो नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी रिलेशन, मीनिंग every element related to itself only. This word is keyword है, only. Means there is a set containing again 1 2 3 and define a relation a to b. सपोज करो यहाँ मैं a b लिखूंगा, लेकिन आपका a b दोनों एलिमेंट सेट a में से ही उठाना है, ठीक है, ऐसा a b आपको उठाना है। सो सपोज करो a माइनस बी मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 1 2 3 और 1 2 3, 1 कैन बी रिलेटेड ओनली 1, मतलब 1 के साथ 1 ही रिलेट होगा, 2 के साथ 2 की होगा, 3 के साथ 3 की होगा, अदरवाइज a माइनस बी 0 कहाँ बनेगा, a के साथ 1 बनेगा, सॉरी 1 के साथ 1 बनेगा, वो 2 नहीं बन सकता, 3 नहीं बन सकता। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये जो ओनली कंडीशन दे दिया गया है, ये ओनली का पता चलेगा। जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे तो इसे ओनली का मीनिंग पता चलेगा। कहने मतलब जो रिलेशन हम बनाएंगे उसमें जो रिजल्ट आएगा जिस क्या हो जाएगा, ये 1 1 एंड 2 2 3 3 ओनली, मीन्स इन तीन पेयर के अलावा और कोई पेयर इसके बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी एलिमेंट सेट ए के बीच में दे रखा है वो एलिमेंट बस खुद के साथ ही अगर रिलेट होते हैं उस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड हियर एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, एम्प्टी रिलेशन मीन्स नो एलिमेंट मेक, कोई किसी से रिलेट नहीं होने चाहिए एक सेट के अंदर। तो ऐसा कोई सेट अगर मिलता है तो वो जो रिलेशन होते हैं तो वो क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, एवरी एलिमेंट मेक्स रिलेशन विद एवरीवन, मतलब एवरी एलिमेंट रिलेटेड विद ईच एलिमेंट। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी एलिमेंट मेक्स रिलेशन विद इटसेल्फ ओनली, और किसी के साथ नहीं है। ओके, सो सी यू देन।